سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج بھارت میں بعد نماز جمعہ مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے ہوئے ہیں۔ مساجد کے باہر، بازاروں میں کہیں 144 نافذ کیا گیا تو کہیں پر ٹائر جلا دیا گیا، کہیں پر بند رکھی گئی دکانیں۔ دیوبند سے، مراد آباد سے، حیدرآباد سے اور آپ کے دلی کی جامع مسجد کے سامنے سے اور مغربی بنگال سے، بنگلہ دیش سے اور بھی مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہیں۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور کس طرح اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر تباہی کا منظر بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو ریسیو کرنے آئے، ویلکم کرنے آئے، بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا ان کا ہیلی کاپٹر۔ اور ایک بچی کی لاش لے کر کے باپ جو جا رہا تھا تو اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ شیوراج حکومت میں مدھیہ پردیش کی حالت زار بیان کرتی ہوئی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور کرناٹک میں جے ڈی ایس ایم ایل اے نے اس وقت 2 ایم ایل اے کے سلسلے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے حق میں ووٹ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس سلسلے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، یہ سب چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات اس وقت نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آئیے ہم ان ویڈیوز کو ہی دیکھ لیتے ہیں جو آج بعد نماز جمعہ مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہیں۔ یہ دہلی جامع مسجد کے باہر کی ہے۔ میں پہلے آپ کو ڈیٹیل سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آواز کے ساتھ ساری ویڈیوز ایک ہی ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کچھ تصویریں آئی ہیں حیدرآباد کی مکہ مسجد کے سامنے سے، یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سری نگر سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، وہاں دیکھیے چوک میں جو مشہور چوک ہے، یہ ہاوڑا مغربی بنگال کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر احتجاج دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مراد آباد اور دیوبند، کشمیر اور یہ مغربی بنگال، بنگلہ دیش اور بھی مختلف علاقوں سے لگاتار دیکھیے بنگلہ دیش کا یہ منظر ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور وہاں کے لوگ اس وقت راستے پر اتر آئے ہیں۔ سب کے سب نوپور اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن 2 لوگوں نے بھارت میں بی جے پی کا ایک سابق لیڈر اور ایک ترجمان، ان دونوں نے جو گستاخی کی، اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ حمایت بھی کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے خلاف ان کی گرفتاری کو لے کر کے اس وقت ملک بھر میں جہاں غصہ نظر آیا، وہاں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں دیکھیے یہ ویڈیو بھی جو AMU سے آئی ہوئی ہے، یہاں پر بھی اساتذہ اور ٹیچرز نے مل کر کے کینڈل مارچ نکال کر کے احتجاج درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس وقت آواز کے ساتھ سنائیں گے، آپ اس کو دیکھ لیں، پھر ہم لوگ اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کشمیر سے آئی ہوئی ویڈیو ہے۔ یہاں کی مشہور چوک میں دیکھیے کہ کس طرح سے دکانیں سب بند کر دی گئی ہیں، اور کسی طرح کے احتجاج سے بچنے کے لیے یہاں پر فل فورس اور پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی طرح کی احتجاجی مظاہرے سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت لگاتار غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بی جے پی ہے، یہاں کی حکومت ہے، ابھی تک نہ نوپور کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، اور نہ ہی نوین جندل کے خلاف، اور نہ ہی ان کو حمایت کرنے والے یتی نرسنگھن کے خلاف، اور نہ ہی بہت سارے لوگوں کے خلاف جو اس وقت لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ان کو فوری طور پر اگر گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں احتجاجی اجلاسیں اور احتجاجی جلسے مزید آگے بڑھنے کی امکانات ہیں۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو کھربا کھرب مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ جو کھیلا ہے، ان کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ مطالبہ اس وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، تھوڑا آپ اس ویجولز دیکھ لیں آواز کے ساتھ، تاکہ جن لوگوں نے احتجاج درج کیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ سکے، پھر میں اگلی خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া সিলেট জেলা ও মহানগরের উদ্যোগে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা যারা স্কুল ভিডিও দেখরা আপনারা সবে শেয়ার করিয়া আপনারা পাশের সবরে দেখার মতন সুযোগ করিয়া দেখা এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনারা শেষ পর্যন্ত যত সময় অনুষ্ঠান বিক্ষোভ মিছিল চলে। আজকের বিক্ষোভ মিছিল অনেকেই অংশগ্রহণ করছেন, আর যারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন না আপনারা সবাই আমরা লাইভের লগে থাকবা, আপনারা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো এবং যারা প্রবাসী আছেন আপনারা আমরা লগে তাহকা শেয়ার করুক, আপনারা পাশাপাশি সবরে দেখার মতো সুযোগ করিয়া দেখা। नाज़रीन गिरामी, एमपी की पुलिस मजलूमों को ही गिरफ्तार कर रही है और कि क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। ऐसे में एक ज़मीनी सतह की रियलिटी सामने आती है। एक मजबूर बाप अपनी बेटी की, छोटी बेटी की लाश अपने कंधे पर लेकर के जाता है। वजह उसकी ये है कि उसको जो है हॉस्पिटल की जानिब से किसी भी तरह की सहूलियात फराहम नहीं की जाती कि कहीं उसको ऐसे एम्बुलेंस का जो है दिया जाए जो उसको लेकर के वो अपने घर तक पहुँचे और बच्चे का अंतिम संस्कार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश से आ रही वीडियो है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए किसी ने लिखा, ये किसी बच्ची की लाश नहीं है बल्कि हुकूमत की नाकामी है जो चीख चीख कर शिवराज हुकूमत में मध्य प्रदेश की हालत ज़ार को बता रही है। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई। तो नाज़रीन गिरामी, गरीब की गुर्बत का मजाक कैसा उड़ाया जाता है। इतनी सारी सहूलियात होने के बावजूद एक बच्ची को एक सहूलत उसके घर तक पहुंचाने के लिए एक लाश को जो है अगर यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस नहीं दिया जाता तो फिर किस बात का जो है डिजिटल इंडिया है और किस बात की तरक्की है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। इससे बहुत सारी हकीकतें हैं नाज़रीन गिरामी, लेकिन क्या करें कि इस वक्त जो है मीडिया पूरा का पूरा जो है जो बाज़ारी औरत का काम होता है वही कर रहा है, जिसकी वजह से हक़ाइक़ इस वक्त सामने नहीं आती। बहरकैफ आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इख्तिदार का घमंड देखें। अगर कोई आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो और आप अपने हेलीकॉप्टर से उन पर धूल उड़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? अब ये घमंड नहीं है इख्तिदार का तो और क्या कह सकते हैं। या तो पहले से सहूलियात बना लिए होते कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर है जो तबाही का मंजर दिखा रहा है। इस वीडियो को भी शेयर करने वाले ने कहा कि ये देखिए इख्तिदार का घमंड कैसा है, जो इनके इस्तकबाल के लिए आए थे उन पर धूल उड़ाया जा रहा है, ये यहाँ की हुकूमत की कारस्तानी है। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को भी शेयर किया। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर अमेरिका लहूलुहान हुआ है। जी हाँ, फायरिंग हुई है और इस बार जो फायरिंग हुई है वो एक प्लांट में हुए, मिशन प्लांट में, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हुए। वाशिंगटन काउंटी शेरिफ के दफ्तर के मुताबिक वाक़या जुमेरात की दोपहर 2:30 बजे पेश आया था, जो इस वक्त सुर्खी बन रही है। अमेरिकी रियासत मेरीलैंड की स्मिथिसबर्ग में एक मिशन प्लांट है, वहाँ पर जो है ये शख्स मुश्तबा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फ़रार हो गया। CBS न्यूज़ ने इसकी तफसीलात फराहम की है। बाद में मकामी पुलिस ने उसका सुराग लगा लिया है, जिसने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्स के एक नौजवान के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई और उसकी गाड़ी से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुआ है, जिसकी शनाख्त वेस्ट वर्जीनिया के रहने वाले 23 साला मोलेंडोर के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक लातीनी अमेरिका से है। वो फिलहाल कोलंबिया
मिशन इंक नामी इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था। हिरासत में लेने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उसके खिलाफ इल्ज़ामात आयद होना बाकी है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना आपकी तिजारती अमेरिका में इस वक्त ना तिजारती माल्स बाकी रहे, महफूज रहे हैं, ना स्कूल्स, ना हॉस्पिटल्स, ना कब्रिस्तान। हर जगह कोई भी पिस्तौल लेकर के घुस जाता है और किसी को भी मारना शुरू कर देता है। और इधर कुछ दिनों से तो इसमें इजाफा होता जा रहा है, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक मरहले तक ये वाक़या पहुँच चुका है। नाज़रीन गिरामी, इधर अलकायदा की धमकी के बाद अहमदाबाद पुलिस अलर्ट पर आ गई है और जगन्नाथ यात्रा की इस वक्त ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात में खुदकश हमले की धमकी दी थी अलकायदा की जानिब से, जिसके बाद जो है पूरे भारत में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया। और बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर इस वक्त अलग अलग जो है मंदिर और मसाजिद और दीगर इलाकों में जो त्यौहार होने वाले हैं, यहाँ जहाँ पर इस वक्त एक भक्तों की या अक़ीदतमंदों की जो भीड़ जमा होती है, उन तमाम इलाकों में इस वक्त अलग अलग तरह से जो है निगाहें रखने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि अलकायदा की धमकी आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ा भदौरा में कशीदगी होने की खबरें आ रही हैं और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। आपको बता दें कि एक मुसलमान आलिम ने बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा का सर कलम करने की बात कही थी, तो उसके बाद से जो है यहाँ पर एक किस्म से जो है कशीदगी देखने को मिली। और इस इश्तिहाल अंगेज़ ऐलान के एक मुबैना वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी। गुज़िश्ता जुमेरात को एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं फ्लैग मार्च करने के लिए भी फ़ौज बुला ली गई थी। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि नूपुर शर्मा को जब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाता तब तक जो है कुछ इसी तरह के हालत बनते जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और आज का दिन बहुत ख़ास दिन था 4 रियासतों के MLAs के लिए। इसमें से अफसोसनाक मामला ये आ रहा है कि कर्नाटक में 2 जनता दल MLA, जिनके नाम भी श्रीनिवास से ही शुरू होता है, एक श्रीनिवास गौड़ा है, एक श्रीनिवास गुब्बी है, इन दोनों ने कांग्रेस को वोट कर दिया। यानी क्रॉस वोटिंग करते हुए जनता दल के जो हामी उम्मीदवार हैं उनको देने के बजाय जो JDS के उम्मीदवार थे उनको दे दिया, जिसकी वजह से जो है कर्नाटक में अब जो है घुमासान शुरू हो चुका है कांग्रेस और JDS के दरमियान में। जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां अपने आप को जो है सेकुलर कहती हैं और अंदरूनी सतह पर है नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। तमाम लोगों का किरदार सियासी तौर पर आप लोगों के सामने है। तमाम लोग जो इख्तिदार के लिए किसी के भी साथ जाना चाहते हैं और जो कुछ भी है उसकी रियलिटी हम आपके सामने रखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। बैकअप इस वक्त जो इन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर जैसी वोटिंग करके बाहर आए, उन्होंने श्रीनिवास गौड़ा ने ये एतराफ़ किया कि जी हाँ, मैंने जो है कांग्रेस को वोट दिया है। जब पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जस्ट आई लव इट। देखिए इस वीडियो। I voted Congress Why, sir? because I love it. नाज़रीन, इधर मंगलुरु से खबर आ रही है कि विटला में हाल ही में RSS के हामी तंजीम VHP और बजरंग दल की जानिब से मुनाकिदा एक प्रोग्राम में मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ लगातार जहर उगलने वाले, मुसलमानों को रेपिस्ट कहने वाले और दुनिया भर के मुसलमानों को जो है बदनाम करने वाले इस लीडर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी पूरी खबर हमने आप लोगों के सामने आपके सामने पेश किया था जिस दिन इसने बयान दिया था। अब खबर आ रही है कि इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। IPC सेक्शन 5052 और सेक्शन 34 के तहत जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। देखना यह है कि जो है अब इसको कब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सिर्फ बराह नाम जो है लोगों को दिखाने के लिए मामला दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि बागपत के कई मदरसों को राइट टू एजुकेशन के तहत नोटिस थमा दिया गया है। जी हाँ, RTA एक्ट के तहत इन मदरसों की मंजूरी नहीं है, इसलिए उनको फ़ौरन बंद कर दिया जाए, वरना 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कुछ मदरसों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद भी किया गया है। ये नोटिस महकमे तालीम बागपत ने जारी किया। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा बागपत की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई थी, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी शरीक हुए थे और इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेते हुए उन्होंने यहाँ पर जो उलमा इकराम के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने नोटिस से मुतालिक कहा कि किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मदरसों के तमाम कागजात मुकम्मल कर लें और जो 1-1 लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया है उससे मुतालिक DM बागपत को अपने जवाब से मुत्तला कर दें।
चुनांचे दहली और बागपत में वकीलों के मशवरे के बाद जिला इंतजामिया बागपत को इलाके के 37 मदरसों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हाफिज मोहम्मद कासिम नाजिम जमीयत उलमा जिला बागपत ने एक जवाब इरसाल किया है कि राइट टू एजुकेशन की तरमीम 2012 की दफ़ा 5 और 2 में वाज़े तौर से लिखा है कि कानून मदरसों, पाठशालाओं या मजहबी इदारों पर आयद नहीं होता। इस तरह नोटिस जारी किया जाना कानून की खिलाफ वर्जी है और एक कौम को परेशान करने के बुरे मकसद से दिया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की जाती है कि जो भी नोटिस मदरसों को जारी किया गया है उसे फ़ौरन तौर पर वापस लिया जाए। इस खत की काफ़ी इस वक्त बागपत कलेक्टर को इरसाल किया गया है, जिसके जवाब में कलेक्टर साहब ने वजाहत की है कि अहले मदारिस हरगिज़ ना घबराएं और वो नोटिस का जो भी जवाब देना चाहे दे दे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको तो पता है कि इस वक्त एक एक करके जो है हर चीज़ को इस वक्त निशाने पर लेने की कोशिश हो रही हैं। ये सारी चीज़ें एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हो रही है कि किसी तरह किसी मौजू को उठाया जाए और किसी न किसी तरह से जो है फंसाने की कोशिशें हों। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।